شاید تیری تقدیر میں لکھے کنارے، شاید میری قسمت ہے یہ طوفان کے دھارے، شاید تیری تقدیر میں لکھے کنارے، شاید تیری تقدیر میں۔ ویسٹرن کلچر کی ساندھی میں بھی اگر غزل کی شمع جھلملا رہی ہے تو اس کا صحرا، اس کا شیک کافی حد تک ان خاص غزل گائکوں کو جاتا ہے جنہوں نے اپنی آواز کے سائے میں غزل کے چراغ کی تھر تھراتی لو کو محفوظ رکھا ہے۔ اردو غزل تقریباً 300 سال کا سفر طے کر چکی ہے، لیکن LP ریکارڈز، کیسٹس اور CD البموں کے ذریعے اس آدھا صدی کے دوران غزل کی مقبولیت میں جو اضافہ ہوا وہ قابل ذکر ہے۔ KL سہگل، بیگم اختر، اقبال بانو، جگجیت سنگھ چترا سنگھ، مہدی حسن، غلام علی، آشا بھونسلے، پنکج ادھاس، ہری ہرن، روپ کمار راٹھور سونالی، بھوپیندر متالی، انرادھا پوڈبال، جسونت سنگھ اور پیناز مسانی جیسے تمام گانے والوں نے غزل کو عام آدمی کے دلوں اور ہونٹوں کے قریب کیا ہے۔ یہ غزل کا جادو اور غزل کی کشش ہی ہے کہ شاستری سنگیت کے لیے سمرپت استاد برکت علی خان صاحب، پنڈت اجے پوہنکر صاحب، امانت علی خان صاحب اور حامد علی خان صاحب جیسے کلاسیکل سنگرز نے بھی غزل کو اپنے دلوں میں پناہ دی اور اسے اپنی آواز دے کر امر بنا دیا۔ دنیا بھر میں کی بورڈ پر کلاسیکل میوزک کے ساتھ تمام انوکھے ایکسپیریمنٹ کرنے والے اکلوتے سنگیتکار پنڈت ابھجیت پوہنکر صاحب بھی غزلوں کو عام آدمی تک پہنچانے کے لیے جی توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ غزلوں کے نام سے منسوب آج کی اس گنگناتی شام اور غزل کی تعریف میں اپنا ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج کے اس ماحول کے لیے بہت مناسب ہے۔ اس کے ہونٹوں کو گلاب، آنکھوں کو کنول کہتے ہیں، اس کے ہونٹوں کو گلاب، آنکھوں کو کنول کہتے ہیں، شاعری میں اس حسن مکمل کو غزل کہتے ہیں، یا یوں کہوں کہ اس کی آنکھوں میں مہکتے کمل کی بات کرو، اس کی آنکھوں میں مہکتے کمل کی بات کرو، غزل کی شام ہے انجم، غزل کی بات کرو۔ غزل کی بات یعنی محبوب کی بات، محبوب کی گفتگو۔ اردو کی ڈکشنری میں بھی غزل کے معنی محبوب سے گفتگو کے ہی ہیں۔ غزل میں محبوب سے بات چیت کا ایک مخصوص لب و لہجہ، ایک وششٹ انداز بیان ہوتا ہے جو ہر شاعر کو اس کی پہچان عطا کرتا ہے۔ اردو کے پہلے شاعر ولی دکنی سے لے کر میر تقی میر، مومن، غالب، ذوق، داغ اور جگر مراد آبادی تک ایسے تمام شاعر ہیں جنہوں نے غزل کی پلکوں کو اپنے اسی انداز بیان کی خوبیوں اور الفاظ کی نوک سے سنوارا ہے۔ غزل ایک خوشبو ہے، غزل ایک جادو ہے، غزل ایک آس ہے، غزل ایک پیاس ہے اور غزل ایک احساس بھی ہے جو شاعر کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے۔ غزل کے سفر کی رہگزر پر آگے بڑھنے سے پہلے میں ان چنندہ شاعروں کے کلام کی بانگی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے فارسی زبان کی بدھا غزل کو اردو میں مقبول کرنے کے لیے نہ صرف ایک مخصوص انداز بیان، ایک عام فہم لب و لہجہ اور ڈکشن عطا کیا، بلکہ عام آدمی کے دلوں میں غزل کے لیے کشش، ایک دیوانگی کا جذبہ بھی پیدا کیا۔
शुरुआत मिर्जा असदुल्ला खान गालिब से करते हैं, जिन्होंने अपने अंदाजे बयान का जिक्र करते हुए कहा है और भी दुनिया में सुखनबर बहुत अच्छे, है और भी दुनिया में सुखनबर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और वहीं उनके समकालीन शायर मीर तकी मीर कहते हैं, मुझको शायर ना कहो मीर कि साहब मैंने दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया। दीवान उर्दू शायरी की छपी हुई किताब को कहते हैं। मोमिन खां मोमिन कहते हैं, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमिन का ये शेर मिर्जा गालिब को बहुत ज्यादा पसंद था। उन्होंने मोमिन के पास पैगाम भेजा कि अगर मोमिन उन्हें अपना एक शेर दे दें तो वे अपना पूरा दीवान उन्हें दे सकते हैं। गालिब के ही समकालीन शायर जौक साहब फरमाते हैं, हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहाएं, हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहाएं, शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता। दाग साहब की बेकरारी देखिए, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। जिगर मुरादाबादी कहते हैं, दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। अगर बात इस दौर के शायरों की करें तो प्रोफेसर वसीम बरेलवी, डॉक्टर बशीर बद्र, अहमद फराज, निदा फाजली, मुनव्वर राना और डॉक्टर राहत इंदौरी जैसे शायरों का नाम इस एतबार से सफ़े अव्वल पर आता है कि उन्होंने गजल की दुल्हन को लफ्जों के नए नए लिबास पहनाने और उसे एक आम फहम लबो लहजा देने का बाकमाल काम किया है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब ने इंसान के मुकद्दर की तशरीह ख्वाब के हवाले से की है। आंखों आंखों रहे और कोई घर ना हो, आंखों आंखों रहे और कोई घर ना हो, ख्वाब जैसा किसी का मुकद्दर ना हो। डॉक्टर बशीर बद्र साहब की शायराना सोच और फिक्र दूसरे शायरों से थोड़ा अलग है। अपने एक मशहूर शेर में वे कहते हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन तमाम शायरों के कलाम पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने उर्दू गजल के गुलशन को अपने जिगर के लहू से सींचकर ऐसे फूल उगाए जिनकी खुशबू से शायरी के दीवानों के घरों का कमरा कमरा महक रहा है। मुशायरों और अदब की दुनिया के नामवर और बहुत सीनियर शायर मलिकजादा मंजूर अहमद साहब फरमाते हैं, दर्द जब तेरी अता है तो गिला किससे करें, दर्द जब तेरी अता है तो गिला किससे करें, हिज्र जब तूने दिया है तो मिला किससे करें। पाकिस्तान के मशहूर शायर फैज अहमद फैज साहब कहते हैं, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। पाकिस्तान के ही अहमद फराज साहब का अंदाजे शायरी देखिए कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। निदा फाजली साहब के तेवर थोड़ा बागी किस्म के हैं। दिल में ना हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। मुनव्वर राना का अंदाजे बयान भी कुछ कम नहीं है, जिसे दुश्मन समझता हूँ वही अपना निकलता है, हर एक पत्थर से मेरे सर का कुछ रिश्ता निकलता है। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब कहते हैं, गरज न सुबह के आने न शब के जाने से, गरज न सुबह के आने न शब के जाने से, गुजर रही है इसी हाल में जमाने से। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब बड़ी ही खूबसूरती से कहते हैं,
हकीकत ही बताता है ना अपना राज देता है, हकीकत ही बताता है ना अपना राज देता है, मुझे मेरे ही अंदर से कोई आवाज देता है। रेलवे के एक बड़े अफसर और नामवर शायर केएल पांडे साहब फरमाते हैं, तेरी यादों के चिरागों से जो धुआं निकला, तेरी यादों के चिरागों से जो धुआं निकला, उदास आंखों से अश्कों का कारवां निकला। इन्हीं शायरों की सफ में एक नाम कशफी झांसबी साहब का भी आता है। अपने एक शेर में वे कहते हैं कि इतने धोखे तेरी दोस्ती से मिले, इतने धोखे तेरी दोस्ती से मिले, तुझसे मिलकर न हम फिर किसी से मिले। गजल की शोखी, गजल की शगुफ्तगी, गजल का मिजाज और गजल की कैफियत हर एक दौर में बदलते आए हैं। इसी तरह अलग अलग दौर में गजल और उसके अंदाज़े बयान में भी तब्दीली आई है, लेकिन सच्ची शायरी वही है जिसे शायर खुद नहीं लिखता बल्कि उसके अंदर छुपी तड़प उससे लिखवाती है। फारसी और उर्दू के मशहूर शायर जनाब मिर्जा असदुल्ला खान गालिब साहब ने एक जगह लिखा है कि जब से मेरे सीने के नासूर का रिसना बंद हुआ, मैंने शेर कहना छोड़ दिया है। कमोबेश हर शायर के दिल में कोई ना कोई नासूर ऐसा होता है जो उसे शेर कहने के लिए कुरेदता है। जब जब कहीं चमन में फूलों को मसला जाता है, दुनिया में दिल टूटते हैं या भूख से तड़पते मासूम बच्चों की सिसकियां सुनाई देती हैं, तो शायरों के दिल से एक धुआं सा उठता है और एक नई गजल जन्म लेती है। गजल के बारे में उर्दू के मशहूर शायर जानिसार अख्तर साहब फरमाते हैं कि हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। आज की शाम में आप जिन मशहूर गजल गायकों से रूबरू होंगे, उनका भी एक मुख्तसर सा तारुफ, एक छोटा सा परिचय आपसे कराता चलूं। फिल्मों और गजल के मशहूर सिंगर जसवंत सिंह साहब का नाम किसी खास तारुफ का मोहताज नहीं है। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज दी है और उनके तकरीबन 4 दर्जन ऑडियो, वीडियो, कैसेट और सीडी एल्बम बाजार में हैं, जिन्हें आप तमाम हजरात बारहा सुनते होंगे, उनसे लुत्फ अंदोज होते होंगे। गुलाब के फूलों जैसी मखमली आवाज और गजल के एक एक लफ्ज, एक एक बोल की अनूठे अंदाज में अदायगी, जसवंत साहब की गजल गायकी की ऐसी खूबियां हैं जो सुनने वालों को उनकी आवाज और अंदाज का दीवाना बनाती हैं। ब्रजेंद्र नाथ साहब का ताल्लुक तहजीब और अदब के शहर लखनऊ से है और अलग अलग म्यूजिक कंपनियों ने उनकी आवाज में कई म्यूजिक एल्बम्स को रिलीज किया है, जिन्हें आपने सुना होगा। ब्रजेंद्र नाथ साहब अपनी आवाज के जादू से दिलों को छूने का हुनर रखते हैं। गजलों में छुपे दर्द की तड़प और प्यार की महक को अपनी आवाज से उभारने का फन ब्रजेंद्र नाथ साहब बखूबी जानते हैं, जिसे आप सभी यहाँ महसूस करेंगे। समीर भालेराव साहब सिंगिंग के उस मुकाम पर हैं जहां पहुंचकर किसी भी सिंगर की आवाज संगीत की स्वर लहरियों से अटखेलियां करके गजलों के अल्फाज और जज्बात के एहसास से गुजरती हुई सीधे सुनने वालों के दिलों में उतरती है। अगर बात आज के प्रोग्राम की फीमेल सिंगर्स की करें तो मेघना कुमार, सुषमा बरसैया और सुरभि जैसी मकबूल गजल सिंगर्स यहाँ आपसे मुखातिब होंगी, जिनकी आवाज के आरोह अवरोह किसी बहते झरने की तरह सुरों के बहाव और गजल गायकी के मुनफरिद अंदाज से वे तमाम गजलें इठला उठती हैं जिन्हें इन मुगन्नियों की आवाज में असर होती है। आज के इस प्रोग्राम में पेश की जाने वाली अलग अलग गजलों के लिए बंदिशों का इंतखाब और म्यूजिक अरेंजमेंट जसवंत सिंह साहब, समीर साहब, अनिल विश्वकर्मा साहब और रवि श्रीवास्तव साहब ने किया है, जबकि 2 गजलों के लिए म्यूजिक राजेंद्र सिंह साहब ने अरेंज किया है। मैं इन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और शुक्रगुजार हूं सुपर साउंड स्टूडियो का, जिनकी कोशिशों से इन तमाम गजलों की रिकॉर्डिंग यहां की जा रही है। गजलों के इस खूबसूरत कॉन्सेप्ट के लिए आइडिया नवीन विश्वकर्मा साहब ने सजेस्ट किया, मैं उनका भी ममनून हूं।
اب میں آج کے پروگرام کی پہلی غزل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جسے اپنی خوبصورت آواز سے سجایا ہے جسونت سنگھ صاحب نے۔ جب جسونت صاحب کسی غزل کو اپنی آواز دیتے ہیں تو ہم شاعری کے ساتھ ساتھ سنگیت کے جادو کو بھی اپنے دل و دماغ میں امڑتا گھمڑتا محسوس کر سکتے ہیں۔ جس طرح کوئی گیانی، کوئی پنڈت اسی مندر میں رکھی پتھر کی مورت میں اپنے منتروں کی طاقت سے روح پھونک دیتا ہے، اسی طرح جسونت جیسا ایک سمرپت گانے والا کسی غزل کی کشش میں اپنی آواز کے جادو سے کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ جسونت صاحب نے ایک جوان پر چڑھنے والی خوبصورت دھن میں اس غزل کو پروتے ہوئے اسے اپنی مخملی آواز عطا کی ہے۔ یہ غزل کچھ اس طرح سے ہے کہ نہ الجھنوں سے نہ ہم زندگی سے ہارے ہیں، نہ الجھنوں سے نہ ہم زندگی سے ہارے ہیں، جو شخص دل میں ہے اپنے اسی سے ہارے ہیں۔ نہ الجھنوں سے نہ ہم زندگی سے ہارے ہیں، جو شخص دل میں ہے اپنے اسی سے ہارے ہیں۔ ہرا سکے جو ہمیں یہ مجال کس کی تھی، ہرا سکے جو ہمیں یہ مجال کس کی تھی، ہم اپنے پیار کی بازی خوشی سے ہارے ہیں۔ ہر اختیار ہے دل پر بچھڑنے والے کا، ہر اختیار ہے دل پر بچھڑنے والے کا، کہ جس کو بھول چکے ہم اسی سے ہارے ہیں۔ ہم اس کے در پہ جو جاتے ہیں بار بار انجم، ہم اس کے در پہ جو جاتے ہیں بار بار انجم، کبھی تو دل سے کبھی زندگی سے ہارے ہیں۔ نہ الجھنوں سے نہ ہم زندگی سے ہارے ہیں، جو شخص دل میں ہے اپنے اسی سے ہارے ہیں۔